بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ون کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے نا سب؟ گڈ۔ اوکے بچوں، اب سب بچے اپنی اردو کی کتاب نکالیں، ٹھیک ہے؟ اپنی اردو کی کتاب۔ بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اردو کی کتاب کا پہلا سبق کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب سب بچے اپنا پہلا صفحہ نمبر 1 نکالیں گے۔ ہمارا صفحہ نمبر 1 ہے یہ، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 1 پر پہلا سبق حمد کیا ہے؟ حمد، اوکے؟ آج ہم پہلی نظم حمد کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بچوں پڑھائی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب بچے لیڈ پینسل سے آج کی تاریخ، دن اور پڑھائی بک پر رائٹ کریں گے، اوکے؟ سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر ایک سیدھی لائن لگائیں اور پھر آج کی تاریخ، آج کون سی تاریخ ہے؟ 3 اپریل۔ اوکے، اس کے بعد آپ یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے پڑھائی، اوکے؟ گڈ۔ یہاں پر ہم لوگ ایسے لائن لگائیں گے اور آج کا ہمارا دن ہے جمعہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم لکھیں گے آج کا دن۔ یہاں ہم آج کی تاریخ 3 اپریل، پڑھائی اور آج کا دن جمعہ لکھیں گے، اوکے؟ تو ہمارا آج کا سبق کیا ہے؟ حمد۔ حمد ایک نظم ہے بچوں، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ بچوں اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کے مالک ہیں، اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، جس طرح کہ اس بک پہ ہی دیکھیں، یہاں پہ آپ کو سورج، پرندے، یہ دیکھیں پرندے، درخت، آسمان، بادل، یہ پھول، دیکھیں یہ سارے پھول اور یہ شہد کی مکھی، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کو اپنے ارد گرد بھی جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اپنی اردو کی بک کا پہلا سبق اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی حمد سے شروع کریں گے، اوکے؟ تو اب سب بچے اپنی فنگر اپنی پہلی لائن یہاں پر رکھیں گے، سب بچے اپنی فنگر یہاں پر رکھیں، گڈ، اس طرح سے، تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کی پہچان ہو اور آپ کو پڑھائی کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو مشکل الفاظ اس نظم میں ہوں گے ان کو ہم ساتھ ساتھ انڈر لائن کر کے ان کے معنی بھی ساتھ ساتھ لکھیں گے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہی مالک، تو ہی رب ہے، تیرے جیسا کوئی کب ہے، تیرے بس میں دنیا ساری، تو ہی داتا سب ہے بھکاری۔ اچھا بچوں، اس میں جو لکھنے والا ہمارا ہے، شاعر ہے جس نے یہ نظم لکھی ہے، بچوں جو نظم لکھتے ہیں اس کو لکھنے والے کو شاعر بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اس کا رائٹر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ شاعر، اوکے؟ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رب ہے اور آپ کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے بس میں ساری دنیا ہے
और आप हमारा रिस्क देने वाले हैं, हमारे मालिक हैं और हम सब भिखारी हैं। भिखारी किसको बोलते हैं बच्चों? आप भिखारी को इस तरह से अंडरलाइन करें, ठीक है। भिखारी बोलते हैं फ़कीर को। किसको बोलते हैं भिखारी? फ़कीर को। ये देखिए, आप इस तरह से इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखेंगे फ़कीर। भिखारी का मतलब क्या है? अंडरलाइन करें और ऊपर लिखें फ़कीर, ठीक है। ओके, अब इससे आगे है सबसे आला। आला का मतलब क्या होता है? आला का मतलब होता है सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंचा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऊंचा। आला का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। सबसे आला, ठीक है। ऊपर नून का नुक्ता और नीचे चे के नुक्ते, ओके। सबसे आला, सबसे बाला। बाला को अंडरलाइन करेंगे और बाला का मतलब होता है बुलंद, ऐसे। सबसे आला यानी कि सबसे ऊंची और सबसे बुलंद। सबसे आला, सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला, ठीक है। सबसे आला, सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला। शाहों का भी शाह तू ही है। शाहों, बच्चों शाहों किसको बोलते हैं? शाहों बादशाहों को कहते हैं। बादशाह जो मुल्क के हुक्मरान होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बादशाह। शाहों का मतलब क्या है? बादशाहों। शाहों का भी शाह वाहिद है और शाहों इसकी जमा है। यहाँ देखिए, हम वाहिद और जमा भी इसी नस्ब के अंदर है। ये देखिए, शाहों इसकी जमा है और शाह जो है वो वाहिद है। शाहों का भी शाह तू ही है, बादशाहों का भी बादशाह तू ही है, ठीक है। हाकिम है अल्लाह तू ही है, कि सबसे बड़ा हाकिम अल्लाह आप ही हो। नाम है तेरा सबके लब पर, ठीक है। नाम है तेरा सबके लब पर, कि सबके लब पर अल्लाह ताला आपका नाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर को आप इस तरह से अंडरलाइन करें और अकबर का मतलब क्या होता है? बड़ा। यहाँ ऊपर आप लिखेंगे बड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तो सबसे बड़ा है, ठीक है बच्चों। आज मैंने आपको हम्द की पढ़ाई करवाई है, तो अब आपने इसको घर में बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इसकी अच्छे से आपने रीडिंग करनी है। इसके जो मुश्किल अल्फाज जो जिस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनको आपने बाइंडर पर उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी राइटिंग और आपको लिखना भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। और आपने इसकी रीडिंग करनी है और रीडिंग करके इसको सुनाना है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ऊपर नून का नुक्ता और नीचे चे के नुक्ते, ओके। सबसे आला, सबसे बाला। बाला को अंडरलाइन करेंगे और बाला का मतलब होता है बुलंद, ऐसे। सबसे आला यानी कि सबसे ऊंची और सबसे बुलंद। सबसे आला, सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला, ठीक है। सबसे आला, सबसे बाला, तू ही है अल्लाह ताला। शाहों का भी शाह तू ही है। शाहों, बच्चों शाहों किसको बोलते हैं? शाहों बादशाहों को कहते हैं। बादशाह जो मुल्क के हुक्मरान होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बादशाह। शाहों का मतलब क्या है? बादशाहों। शाहों का भी शाह वाहिद है और शाहों इसकी जमा है। यहाँ देखिए, हम वाहिद और जमा भी इसी नस्ब के अंदर है। ये देखिए,
शाहों इसकी जमा है और शाह जो है वो वाहिद है। शाहों का भी शाह तू ही है, बादशाहों का भी बादशाह तू ही है। ठीक है। हाकिम है अल्लाह तू ही है, कि सबसे बड़ा हाकिम अल्लाह आप ही हो। ठीक है। नाम है तेरा सबके लब पर, कि सबके लब पर अल्लाह ताला आपका नाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर, अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर को आप इस तरह से अंडरलाइन करें। और अकबर का मतलब क्या होता है? बड़ा। यहाँ ऊपर आप लिखेंगे बड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तो सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको हम्द की पढ़ाई करवाई है, तो अब आपने इसको घर में बार बार रिवाइज करना है। ठीक है। इसकी अच्छे से आपने रीडिंग करनी है। इसके जो मुश्किल अल्फाज जो जिस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपने बाइंडर पर उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी राइटिंग और आपको लिखना भी अच्छे से आ जाए। ठीक है। और आपने इसकी रीडिंग करनी है और रीडिंग करके इसको सुनाना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।